Good morning student, Jai Swaminarayan. Welcome back to Atmi Green School, Jhareshwar Bharuch. My name is Swati Sharma and it's class 7 and our chapter is rational number. Okay, in this chapter we learn about rational number. Okay, so what is the definition of rational number? When a number that can be represented in the form of p upon q, where p and q are integer and q is not equal to 0, it is called rational number. Okay, understand? When the number is denoted in the form of p upon q, so we can say that it's a rational number. Okay, now yesterday we talk about every natural number is also a rational number. For example, 5 is a natural number which can be written in the form of 5 upon 1. Okay, so it is also a rational number. Okay, every whole number is also a rational number. Every whole number is also a rational number and every integer is also a rational number. Integer भी क्या है? rational number है. Every fraction is also a rational number and division by 0 is not allowed in, so a rational number cannot have 0 as a denominator. Okay, understand? Now what is positive rational number? If both of the both numerator and denominator of rational number are positive, then the rational number is said to be positive rational number. And if both the numerator and denominator are having negative signs, then also we can say that it's a positive rational number. Okay, so you can say that if numerator and denominator having same sign, means like sign, then we can say that it's a पॉजिटिव रेशनल नंबर. एंड व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक भी नेगेटिव है, देन वी कैन से दैट इट्स अ नेगेटिव रेशनल नंबर. एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर. नेचुरल नंबर, बिकॉज नेचुरल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, सो वी कैन conclude every natural number is a positive rational number. Okay, and every whole number is also a positive natural number, but every negative integer is a negative rational number, or 0 is neither positive nor negative. Okay, remember these things. 0 is neither positive nor negative. Okay, and we can talk about equivalent rational number also. Yesterday we talked about equivalent rational number. What is equivalent rational number? By multiplying the numerator and denominator of a rational number by the same non-zero integer, we obtain another rational number equivalent to the given rational number. Okay, this is exactly like obtaining equivalent fraction. Okay, yesterday we can see how to find the equivalent rational number. Okay, now rational number on the number line. How to denote any rational number on the number line? So you can remember some points whenever you denote any rational number on number line. So what is your first point? Let us understand some of fact one should keep in mind during such a representation. All the negative integer are always represented on the left of 0. This hold for rational number. Okay, understand as well. Thus negative rational number are always represented on the left side of 0 and positive rational number on its right. ओके, मतलब 0 के लेफ्ट साइड में आपको क्या लिखना है? नेगेटिव रेशनल नंबर. एंड 0 के राइट साइड में आपको क्या लिखना है? ऑलवेज पॉजिटिव रेशनल नंबर. ओके, पेयर ऑफ इंटीजर्स सच एस 1, -1 और 2, -2, 2 एक्सेट्रा आर ऑल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 0. ओके, 1 जितनी डिस्टेंस पर होगा 0 से, उतने ही डिस्टेंस पर -1 होगा. 1 राइट साइड में होगा क्योंकि वो पॉजिटिव साइन के साथ में है. -1 किस साइड में होगा? लेफ्ट साइड में. ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस होल्ड ट्रू फॉर रेशनल नंबर एज वेल 1/2 एंड -1/2 ऑल्सो. ओके, 1/2 जितने डिस्टेंस पर होगा 0 से, उतना ही डिस्टेंस पर -1/2 भी होगा 0 से. अंडरस्टैंड?
Okay, so and both the numbers means -1/2 and 1/2 are opposite sides. ओके, एक लेफ्ट साइड पर होगा तो एक राइट साइड पर होगा. विच वन इज इन लेफ्ट साइड? नेगेटिव नंबर इज इन लेफ्ट साइड ऑफ ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर ऑलवेज इज इन राइट साइड ऑफ द ज़ीरो. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ व्हाट इज द थर्ड पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर? द डिस्टेंस बिटवीन 0 and 1 is known as the unit length. Thus distance between 0 and 2 will be 2 unit length. So when will the distance between 0 and -2 is also 2 unit. Okay, similarly distance between 0 and 1/2 will be half unit length. Okay, understand. Now whenever you want to draw any number on number line, so first step आपका क्या रहेगा? The denominator all the rational number is same. आपको क्या देखना है? क्या सारे रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम है? ओके, एंड ईच यूनिट लेंथ शुड बी डिवाइडेड इनटू दैट पार्ट. अगर उनका डिनोमिनेटर सेम है, सपोज डिनोमिनेटर इज़ 3, सो यू हैव टू डिवाइड 0 से 1 के बीच में कितना यूनिट बताया था? 1 यूनिट. सो उस 1 यूनिट को आपको कितने उसमें पार्ट में डिवाइड करना है? 3 पार्ट में. मीन्स 0/3, 1/3, 2/3 एंड 3/3. When you write 3/3, then it become a 1. Okay, because 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. So you can write 1. ओके, अंडरस्टैंड. सिमिलरली अगर माइनस साइन के साथ में है तो आपको किधर लिखना है उसे? लेफ्ट साइड में. ओके, 0 के लेफ्ट साइड में. मीन्स -1/3, -2/3 एंड -3/3, that is -1. ओके, अंडरस्टैंड. Yesterday we talk about it. Okay, now rational number in its standard form. Now what is second step? We can see that all the point that we have marked lie जो बीच में हो रहे हैं -1 and 1 के. Thus on a number line we mark -1, 0 and 1 and then divide each unit length into that number of part. मीन्स जो डिनोमिनेटर है उस नंबर के पार्ट में आपको डिवाइड कर देना है. ओके, हमारे केस में 1/3 था तो हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना था. अगर आपके डिनोमिनेटर 8 है या 7 है, सो सी द डिनोमिनेटर एंड वॉट एवर द डिनोमिनेटर हैविंग, सो आपको उतने ही पार्ट में उस 0 और 1 के पार्ट को डिवाइड कर देना है. ओके, अंडरस्टैंड. सपोज आपको 3/7 को नंबर लाइन पर डिनोट करना है. सो योर डिनोमिनेटर इज 7. सो व्हाट कैन यू डू? 0/7, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 7/7 इट बिकम 1. ओके, सो हमने क्या नंबर बोला था? 3/7. सो यू कैन राइट 3/7 ऑन द नंबर लाइन easily. Okay, understand. Now standard form of a rational number. Now see standard. What is the standard form of rational number? A rational number is said to be in standard form if and only if the numerator and denominator are co-prime. That is, they have no common factor other than 1. मीन्स अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसे नंबर हैं जिनके जब आप फैक्टर निकाल रहे हैं, सो यू कैन गेट ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर. ओके, सो दे आर सेड टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, नाउ सेकेंड कंडीशन इज द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव. और डिनोमिनेटर कैसा रहना चाहिए? उसका पॉजिटिव रहना चाहिए. सी हियर द एग्जाम्पल 3/5. सो 3 and 5 के बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है. सो 3/5 इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. -5/8 इज ऑल्सो इन स्टैंडर्ड फॉर्म. 2/7 is in standard form. -7/11 is also in standard form. The denominator of these rational number are positive integer and 1 is the only common factor between the numerator and denominator.
further the negative sign occur only in the denominator. Okay, जो नेगेटिव साइन है वो ऑलवेज कहाँ होना चाहिए, न्यूमरेटर में ही होना चाहिए. ओके, नेगेटिव साइन कहाँ होना चाहिए बच्चों, ऑलवेज न्यूमरेटर में. ओके, डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए. ओके, सच रेशनल नंबर आर सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म. Okay, so what is the condition for rational number to be in standard form? So first condition is the numerator and the denominator are co-prime, means they have only one as a common factor. Okay, understand? Then the second condition is the denominator of the rational number is positive. Okay, denominator कैसा होना चाहिए, positive. Now let's see how to find. See the definition. A rational number is said to be in the standard form if its denominator is positive integer and the numerator and denominator have no common factor other than 1. If a rational number is not in the standard form, then it can be reduced to the standard form. हमको क्या करना पड़ेगा, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना ही पड़ेगा. ओके, अंडरस्टैंड? सो लेट्स सी हियर 45/30. सो हियर हमें ये तो पता है कि डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं है. ओके, बट जो नंबर है 45 एंड 30, क्या ये दोनों नंबर में कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन ईजीली सी दैट अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं या 3 से डिवाइड करते हैं तो ये नंबर हमारा डिवाइड ईजीली हो जाएंगे. दोनों नंबर 45 एंड 30 बोथ नंबर हैव, अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से तो ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे. सो लेट्स डिवाइड -45/30. हमें न्यूमरेटर में जिस नंबर से डिवाइड करना है सेम नंबर से हमें डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना है. ओके, सो वी कैन गेट -15/10. ओके, नाउ हियर अगेन वी कैन ईजीली सी दैट हियर -15 एंड 10 इन दोनों में 5 एज अ कॉमन फैक्टर हमें दिख रहा है. सो वी कैन डिवाइड बाय 5 ऑल्सो. सो वी कैन गेट -3/2. Okay, understand? So -3/2 is the standard form. Okay, we had to divide twice, first time by 3 and then 5. This could also be, हम इसे डायरेक्ट 15 से भी डिवाइड कर सकते थे. ओके, अभी 15 हम कैसे निकालेंगे? सपोज़ आपको नंबर नहीं पता चल रहा है कि आप किस नंबर से इसे डिवाइड करो तो आपका क्या बन जाए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए. सो व्हाट कैन यू डू, आपको दोनों नंबर्स को लिख लेना है और एलसीएम निकाल लेना है. सपोज़ 45, यहाँ पर हमारे पास नंबर था 45 एंड 30. सो वी नो 3 1 3, 3 5 15, 3 1 3 0. ओके, नाउ अगेन 5 से जाएगा, 5 3 5 2. अब कोई भी कॉमन नंबर नहीं दिख रहा है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 5 3 15. सो दिस वे यू कैन ऑल्सो फाइंड द हाउ टू फाइंड स्टैंडर्ड फॉर्म. सो अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप इस वे से भी स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड कर सकते हैं. ओके, लेट्स सी अनदर एग्जांपल 36/24. सो -36 एंड 24, सॉरी +36 से ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड होंगे. 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2, 2 2 4. अगेन 2 से जाएंगे, 2 9 18, 2 6. नाउ इट विल बी डिवाइडेड बाय 3. सी हियर 36 एंड 24. ओके, 2 से गया, अगेन 2 से, नाउ 3 3 3 9, 3 2 6. अब कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है. सो विच नंबर यू हैव टू डिवाइड, 3 2 6 एंड 6 2 12. So you have to divide, if you divide it by 12 by both the number, so you can get standard form of that number. Okay, let's divide by 12. Now 36/-24 divided by 12 divided by 12. So you can get 3/12.
-2. बट सी हियर डिनोमिनेटर इज़ नेगेटिव, बट हमारी कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए. अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है सो योर डिनोमिनेटर मस्ट हैव पॉजिटिव नंबर. सो व्हाट कैन यू डू, अगर आप -1 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ करते हैं सो योर डिनोमिनेटर बिकम पॉजिटिव. अगर न्यूमरेटर में कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा. सो योर आंसर इज़ 2 -3/2 इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर. ओके, और यू कैन डायरेक्टली डिवाइडेड बाय -12. अगर आपको डिनोमिनेटर्स हटाना है तो आपने क्या किया, -12 से डिवाइड कर दिया. ओके, सो दिस वे यू कैन ऑल्सो फाइंड द स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ सी comparison of rational number. So student, when I think you are remember how to compare two fraction. Whenever we want to compare two fractions, so first of all we have to same the denominator. अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें सबसे फर्स्ट क्या करना होता है, डिनोमिनेटर सेम करना होता है. ओके, सो वी नो हाउ टू कंपेयर टू इंटीजर और टू फ्रैक्शन. सो वी सेम मेथड हम कहाँ यूज़ करेंगे, इसमें भी यूज़ करेंगे. ओके, रैशनल नंबर में भी हम यूज़ करेंगे. टू रैशनल नंबर कैन इवन बी कंपेयर्ड बाय फाइंडिंग देयर क्रॉस प्रोडक्ट. आप क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा भी फाइंड कर सकते हैं, और सेकंड किससे फाइंड कर सकते हैं आप, उसका डिनोमिनेटर सेम करके. ओके, so two positive rational number 2/3 and 5/7 can be compared as studied earlier in the case of fraction. Okay, and the second method is Mary compared two negative rational number -1/2 and -1/5 using number line. और आप नंबर लाइन के थ्रू भी कंपेयर कर सकते हैं. जो नंबर राइट साइड में होगा वो नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा. वी नो दैट हम जब नंबर लाइन बनाते हैं तो 0 के राइट साइड में आता है 1, 1 के राइट साइड में आता है 2, 2 के राइट साइड में आता है 3. सो वेन एवर वी गो फॉर राइट साइड सो आवर नंबर बिकम ग्रेटर एंड ग्रेटर. ओके, एंड वेन वी गो लेफ्ट साइड सो आवर नंबर विल बी स्मॉलर. ओके, सो आप नंबर लाइन के थ्रू भी उसे आप ड्रॉ कर सकते हैं, अंडरस्टैंड, फाइंड कर सकते हैं. एंड द केस ऑफ पेयर ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर इज सिमिलर टू कंपेयर टू नेगेटिव रैशनल नंबर. ओके, वी कंपेयर देम इग्नोरिंग देयर नेगेटिव साइन एंड देन रिवर्स द ऑर्डर. सी, जो नेगेटिव नंबर होता है -1 इज़ द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर. ओके, यू ऑल आर नो ना, हमने क्या पढ़ा है कि जो नेगेटिव नंबर होता है वो -1 जो है सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर है. अंडरस्टैंड. सो दिस वे वी हैव कंपेयर टू नंबर्स. सी, -7/5 and -5/3. We first compare 7/5 and 5/3. So when how to compare this number, first of all we have to compare same the denominator. Okay, so when we same the denominator so we can easily find 7/5. so हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन एंड 5/3 5 का मल्टीप्लिकेशन. सो ये हो गया 25/15 एंड 21/15. नाउ वी नो 25 इज़ ग्रेटर देन 21. सो वी कैन राइट 5/3 इज़ ग्रेटर देन 7/5. बट हियर बोथ आर हैविंग नेगेटिव साइन. सो हमें क्या करना है, हमने पहले कंपैरिजन कर लिया, अब हमें उसके साइन को क्या कर देना है, पलट देना है. ओके, अंडरस्टैंड. सो 21/15 -21/15 is greater than -25/15. Okay, or you can say that 7/5 is greater than 5/3 -5/3. Okay, comparison of negative and positive rational number. Whenever this type
two type of number are given for comparison, so you can write always positive number is greater number. Okay, understand? So this way you compare the numbers. Okay, now see the example. 4 upon minus 9, 16 upon minus 16 upon 36 रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर. सो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है वो देख लीजिए. अगर दो नंबर हैं हमारे पास में 4 अपॉन माइनस 9 एंड माइनस 16 अपॉन 36, दो मेथड है. अगेन आप इसका डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं. ओके, और यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई देम. मीन्स फर्स्ट वाले के न्यूमरेटर में सेकंड वाले का डिनोमिनेटर एंड सेकंड वाले के न्यूमरेटर में फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर. ओके, अगर ये दोनों नंबर सेम हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, दोनों इक्वल आ जाएंगे. नाउ सी 36 इंटू 4, 4 6 24, 4 3 12 और 4 12 और 2 14. अगेन 9 6 54 एंड 9 1 9 एंड 5 14. माइनस माइनस प्लस. देखिए आपका दोनों आंसर क्या है, राइट आया है, सेम आया है. सो दे आर सेम रेशनल नंबर. ओके, रिप्रेजेंट सेम रेशनल नंबर. ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस वे you have find is two rational number are same or not, and two rewrite rational number in standard form also. Okay, understand? Remember this thing. Have a good day.